Welcome to this live batch of IFRS. Today is one of the special day because this is my 35th batch of IFRS, teaching IFRS for more than 17 years. Why I am saying this? Because you understand that this is not a new thing, but always I prepared fresh new things, new examples. I always study because I think if I don't give good outcome in the class, I am not satisfied. Not a question of you. It's my satisfaction. Forget about monetary terms. Whatever you have paid, whatever I have received, that's immaterial. The simple thing is that I should be enjoying my class. So this is a special day because this is the 35th batch of IFRS. And in more than 17 years, I am teaching IFRS. Normally, I take 3.5 hour class. Any batch, not only IFRS. Since my, you can say CA classes, since that time I always take 3.5 hour class. Even in online mode, since 2014, when I'm teaching online, all classes are 3.5 hour. But this is the first time a different style of batch. Those who are registered or may not registered will register. Just please remember everything properly so that you don't have to ask again and again. Presently, in the month of January, we will have classes only on Friday. 1.5 hour. That means 4 Friday. If you count whatever the number of Fridays are there in January, they are 4 Fridays. Other than today, 3 more Fridays are there. So in the month of January, we will have 4 classes of 1.5 hour, which will be on Friday. From February, we will have this Friday class running. Along with that, we will have Sunday class morning 8 to 10. Sunday class morning 8 to 10. Those 2 classes will be running till March 10th. In the entire month of February, there will be 2 classes. One is Friday evening, which is 1.5 hour, and the February Sunday morning 8 to 10 o'clock, 2 hours. Maybe in the month of February, 1 or 2 extra classes are there. I have not made an exact schedule in my mind. But the 2 classes are fixed in the month of February. That is on Friday this time, 1.5 hour, and Sunday morning, 2 hours, 8 to 10. That will be running till around 10th of March. From March 10th, which is the normal time when I always start the IFRS batches. So from March, there will be additional class on Monday morning 7 a.m. and Wednesday evening 8 p.m. So from March, you can say we will switch off these Friday classes. The Friday class will run till 10th of March. And from March 10th, Friday class will not be there. It will be Monday morning 7 a.m. and it will be Wednesday evening 8 p.m. and it will be Sunday morning 8 to 10. So March, April, May, 3 months, there will be 3 classes in a week. And then you will be giving your exam in June. If we talk about exam, because I'm not thinking about exam, but just that if somebody is thinking giving IFRS exam, you will be giving your June exam with these many classes. Normally, since last 17 years, I have taken always the IFRS batch for 3 months. And those 3 months, the number of classes were around 25. Each class 3.5 hour. So approximately 100-hour classes. From March, those classes will be there. The 25 classes from around 10th of March, 3.5 hour, that will already be there 100 hours. And these January, February, these classes are, if say, coming to around 50-60 hours extra teaching. So you can say that in place of 90 to 100-hour teaching, this time it will be 150+ hour teaching, and that too live. Now somebody will say that, sir, I'm not free at this time, that time. Can't adjust, sir. So no request and no acceptance, because sub schedule bana hua hai and the schedule will be running like this. If you can attend, very well.
If you can't attend, recordings will be there after the class. You can refer the recordings as per your convenience. You will say why we are doing like this. The major portion is that this time we are covering US gap. In IFRS curriculum, exam, syllabus, US gap doesn't fall. Matlab, we will be studying US gap just for the sake of knowledge, just for knowledge purpose. No concern with the exam and the syllabus content. No concern. The US gap will be taught to you just for the sake of knowledge. Now, for US gap classes, I generally felt that I will not be giving recording. You will say, sir, why? Because so many recordings you will not be able to manage. So better that the recordings should not be given for US gap. You just attend those classes live. If yes, then okay. If you can't, then don't do recording also. Just focus on IFRS. Reason being that what is the difference between Indian accounting, Ind AS, Indian GAAP, US GAAP, IFRS? The difference, if you talk about Indian accounting, Ind AS or Indian GAAP and IFRS is maximum 1%, maximum. 99% it's common areas. So when we teach IFRS, we already cover the Indian accounting, Indian GAAP, Ind AS difference wherever they are applicable. So that we always cover in the classes since last 17 years. So that to anyhow going to cover. The difference between US GAAP and IFRS is around 15 to 20%. Not that the asset definition, liability definition, expenditure, income definition is going to change. It is not going to change. It will remain same. But then US GAAP has differences quite significant in accounting for assets, in accounting for liability, in accounting for expenditures and incomes. The differences are there. And everywhere, here, there, some differences are there. Just that when now I am saying, when the exam will come May, June, you will call me and you will say, sir, मैं क्या करूं? सर आप यहां पर सर्टिफिकेट लेने आए हैं, मत ही करिए. Because so many students are already chartered accountant. You are already professionally qualified. तो और एक तो IFRS सर्टिफिकेट लेकर क्या होएगा? कुछ नहीं होना है. Believe me. If your intention, if your interest is to get the certificate, then better not to study IFRS, which you will understand in this coming 30 minutes. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? Maybe for the timing it is coming like a parvachan. It's not a question of parvachan. It's a question that if you want to work, your purpose is to know accounting very well, very detailed, practical oriented. Then from today, don't think that you are a student and I am a teacher. The relationship between you and me, we are not establishing today for this batch as a teacher and a student. We are establishing a relationship of a friend, a guider, a mentor, a helper, that I will take you if you are a graduate, not having sound knowledge in accounting, then also take your knowledge even better than a chartered accountant. There are students in the class, those who are CA, but if you are undergraduate, you are graduate but not having professional qualification. But the purpose that your knowledge should be taken to the next level. And for that, giving 50, 60 hours extra, not charging anything extra. Somebody will say that, sir, यहाँ ये पैसा है, वहां वो पैसा है. सर, मेरे को नहीं सुनना है आपका. बिकॉज आपको एक कॉमन मैन के जैसे एक नॉर्मल दो और दो चार नहीं समझ में आता है, then in that case it is very difficult on my part to give you logic for the fees. Not a single place in the world, I'm giving you guarantee, not a single place in the world, the teaching for IFRS is more than 50, 60 hours. This is 3 times. At the same time, full coverage of US gap. So it's a question of money. आता ही नहीं यार. पैसा क्या चार्ज कर रहे हैं? Peanuts. Believe me. Since you are on the other table, you become Prakash Saraf, you become a tuition provider, and you teach for 150, 160 hours live, not recorded. What fees you will charge? You cannot think. Money when you will be using that life, then only you can understand what should be the fees for this. If you take training for IFRS, say in a 5-star, 7-star hotel from Big Four,
for 3 days, 4 days, say 6 hours each. 6 into 4, 24, maybe 24, 25 hours. The charges are 1.5 lakh. I'm not comparing with the money. I'm just telling you that this batch is not for teaching for as a student and as a teacher and making you pass the exam. वो नहीं करना है. वो लास्ट में मई महीने में सोच लेंगे. We will think for that. But after 15th of May, I need to give exam, pass the exam. Abhi, for 4 months, don't think about exam. The goal is not to pass the exam. The goal is to help you to think like a professional, to help anybody in the world, any organization, anywhere in accounting domain to the next level. That means you need to think, you need to understand that nobody can be better than you in accounting in these 6 months when you give your life. Say 5 months, January to May, because June exam is there. हम लोग को 5 महीना में अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा अकाउंटिंग सीखना है जो दुनिया में किसी को नहीं आता है. पर्पस ये है. दिल में जितना, खून में जितना है, सब निकाल देंगे. आपको जो पूछना है आप पूछिए, कोई टेंशन नहीं. लेकिन बार बार एक ही बात को नहीं करेंगे. सर कब क्लास होगा, नहीं होएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर मेनी हु ज्वाइन लेट. सबसे पहले पंक्चुअल बनना है. 8 बजे क्लास, 8 बजे आना है. कि हम लोग को तकलीफ नहीं है, हम लोग काम नहीं करते. चुपचाप से क्लास में टाइम पे आना है. 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए. 8 o'clock क्लास होगा फॉर कमिंग जनवरी, Friday, 8 to 9, 9:30. 1.5 hour. So 4 classes in the month of January. February, along with Friday, Sunday morning, 8 to 10 a.m. 2 classes. Maybe February, 1-2 class extra hoga. Be ready for that. Obviously, that cannot be on Friday and Sunday. That is already happening. This will be running till March 10th. March 10th से Friday class बंद and Monday, Wednesday start. Monday morning 7 a.m. Wednesday evening 8 p.m. That will be 3.5 hours each. That is my normal routine which I have done since last 17 years, 34 batches. यानी कि जो आपको जनवरी फरवरी में पढ़ाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा है. उसमें अपने आईएफआरएस नहीं डील करके आईएफआरएस का इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, यूएस गैप वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं जो अपने नॉर्मल बैच में नहीं पढ़ते हैं. और आपका अकाउंटिंग का नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है. इफ समथिंग यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली, यू विल नेवर फॉरगेट. कि आज आपको मान लीजिए आप कोई भी लेवल पे स्टडी किए हैं, आपको फिर से आईएफआरएस क्यों पढ़ना पड़ रहा है? व्हाई? दैट मीन्स देयर इज सम गैप इन योर स्टडी. मे बी यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट. व्हाई दैट द स्टडी वाज नॉट डन टू द लेवल विच शुड हैव बीन देयर. हम यहां वो कवर करने के लिए बैठे हैं. हम यहां पर एज अ कोई एग्जाम के लिए पढ़ने नहीं बैठे हैं. ऐसे ही आईएफआरएस लिखा हुआ है, जून 26 बैच, फॉरगेट अबाउट एग्जाम एंड ऑल दैट. ठीक है, ये और बात है, मैं 5-10 मिनट बात करूंगा एग्जाम में क्वेश्चंस, हाउ द क्वेश्चंस कम्स एंड ऑल दैट, दैट्स सेकेंडरी. बट अपने प्योर लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, not a question of IFRS accounting. There are many in the class. Most of you are working professionals. Maybe in the organization you are doing accounting work only. और हो सकता है आप अकाउंटिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज है, आप जानना चाहते हैं. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. Suppose an organization is purchasing an assets on credit for 10 crore payable after 3 years. We are purchasing a plant and machinery. In every organization, this transaction happen. Maybe the value will be different. Every organization में ये transaction होता है. मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं. There is an organization X Limited purchasing and machinery, plant and machinery for 10 crore on credit payable after 3 years. एसेट्स खरीद रहे हैं 10 करोड़ का, पेमेंट 3 साल बाद करने का है. We need to make the payment after 3 years. What will be the value of asset? We will be recording in the books today. An organization purchasing an asset on credit for 10 crore payable after 3 years.
So today, when we are purchasing the assets, at what value we will record the assets in the books of accounts? Question to all of you, everyone in the class. क्या वैल्यू पे एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे? You can chat in the chat box. Everyone. If you don't engage yourself, no point attending live classes. Better do recordings. You have to be always involved in the class, whatever discussions are going on. Please, it's a request. The present value means what, sir? What will be the value? 10 crore, greater than 10 crore, less than 10 crore? Again, I am repeating the transaction. An organization purchasing a plant and machinery, value 10 crore, on credit, payable after 3 years. So presently, लेस देन 3 करोड़ 10 करोड़ होगा. less than 10 crore. ठीक है. Others, anybody else other than Amit? अखिल जी? 10 करोड़. 10 crore. ठीक है. और सर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है तो हम डिवाइडेड बाई 3 करके जितना वैल्यू आएगा वो करंट असेट में करेंगे. वो बाकी का जो है वो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा, उसको प्रीपेड एक्सपेंस में रिकॉर्ड करके रखेंगे, या वो पेएबल ही रहेगा, अकाउंट्स पेएबल में ही रहेगा. अगर एक्सपेंस नहीं किया तो पेएबल में रहेगा. ठीक है. ओके. यानी कि वन पर्सन इज सेइंग लेस देन 10 करोड़, सम पर्सन आर टेइंग 10 करोड़, और एक जन ने तो बहुत नया ही कहानी बना दिया कि 10 करोड़ के बदले हम लोग उसको कब अकाउंटिंग पीरियड देखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 3 करंट एसेट्स रखेंगे, बैलेंस प्रीपेड रखेंगे एंड ऑल दैट. अदर्स? अर्नव, आशुतोष, हबीबुद्दीन, जहानवी, जॉयदीप, खुशबू, ललिता, प्रफुल्ल, झैंग. 10 करोड़. यस सर, यस सर. सौ नहीं बोलेंगे. A class will not be enjoyable to you if you don't engage yourself. मजा आने के लिए बोलना पड़ेगा. You will think it is an online class. अरे फिजिकल क्लास होगा तो भी तो एक एक जन से पूछेंगे ही यार. हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम वेरी सीजन्ड प्लेयर इन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. मे बी एवरीबडी वीडियो इज ऑफ, बट आई कैन सी फ्रॉम हियर what you are sitting and what you are thinking. ठीक है. तो आप ये टेंशन मत लीजिए. क्या भाई ललिता? यस. Yeah, the asset will be recorded at present value, and the difference between the 10 crore and the present value, whatever it is recorded as an expense. Expense means interest. Can we say? Yes, interest, finance expense. Yes, Finance cost. expense. ठीक है. Anybody else? Anybody else? क्या सुतोष जी? हबीबुद्दीन, जोयदीप, खुशबू, कोई भी, anyone? There are certain things we need to understand here. I'm not talking about debit credit. Accounts is not debit credit. Forget about debit credit at all. डेबिट क्रेडिट पढ़ने यहाँ नहीं बैठे. ठीक है. ये डेबिट कर देंगे, करंट एसेट्स ले जाएंगे, प्रीपेड डेबिट कर. दिस इज इफ वी आर सेइंग दैट मींस वी डोंट नो एनी अकाउंट. कुछ अकाउंट नहीं आता है. डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है. वो एक तरीका है जस्ट अकाउंट्स को लिखने का. वेरी सिली, वेरी नॉर्मल थिंग. आप थोड़ा ऊपर से सोचिए, ओपन एंडेड. मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल सोचा. So I was asking my team members in the office at around 5:30. मान लीजिए 7-8 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं. मैंने बोला आज हम क्लास में ये एग्जाम्पल देगा. तो वो लोग बोला सर क्या एग्जाम्पल देंगे बताइए ना. माई स्टाफ आस्क्ड मी. तो आई सेड दिस कि हम लोग एक एसेट्स खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, एंड वी विल बी पेइंग टू द सप्लायर आफ्टर 3 years.
द वैल्यू ऑफ द एसेट इज दिस। अब मेरा टीम में कुछ लोग डिजाइनर वगैरह भी है, वो लोग अकाउंट्स वगैरह नहीं पढ़ा है, वो कुछ और बोला कुछ और बोला, तो हम सोचा मजा आएगा क्लास में भी, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिकॉर्डिंग क्या है। तो मेरे को बोला somebody who is a designer doing the designing of this, suppose this designing done by him, he's saying that सर ये रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्या रिकॉर्ड करना है। हम सोचे यार अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टू रिकॉर्ड। क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है, मान लीजिए द पर्सन हु इज डिजाइनिंग दीज थिंग्स ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 20,000, तो उसको हर महीना सैलरी मिलता है, सैलरी उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, वी क्रेडिट द सैलरी इन एज अकाउंट, उससे खर्चा कर देता है, वो कोई अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करता है, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नथिंग, बैंक में पैसा आया निकाल लिए, खर्चा कर दिए, फिर काम कर लिए, फिर आया, दैट मीन्स ही इज नॉट प्रिपेयरिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने बोला कि हम लोग के यहां तुम आते हो तो अकाउंटेंट डेली आता है, वो क्या करते रहता है, ट्यूशन फीस का पैसा आया, ये खर्चा लगा, क्यों करता है वो। तो आई टोल्ड हिम दैट हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न लगाना है, हम इनकम टैक्स के अंदर बोलेंगे मेरा इनकम 2 लाख है, गवर्नमेंट मान लेगा। इफ आई विल से इनकम ईच 2 लाख, वेदर द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट, और आई विल से 20 लाख, वेदर गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट, गवर्नमेंट रिक्वायर रिकॉर्ड्स। आपका इनकम ऐसा कैसे आया, आपको ट्यूशन फीस कितना मिला, आपने खर्चे कितने किए, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, उस पर टैक्स दोगे ना। मान लीजिए इनकम टैक्स नहीं है, फॉरगेट अबाउट इनकम टैक्स, आई एम गोइंग फॉर लोन फ्रॉम बैंक, बैंक के पास हम लोन लेने जा रहे हैं, बैंक मेरे को चेहरा देखकर लोन देगा, बैंक विल आस्क द रिकॉर्ड्स, आपका एसेट्स क्या है, आपका लाइबिलिटी क्या है, आपके इनकम कितने हैं, खर्चे कितने हैं, आपका औकात क्या है, सो दैट बैंक विल बी गिविंग मी लोन, माई लिमिट एंड ऑल दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई कंपनी, सपोज रिलायंस, आपको शेयर में पैसा लगाना है, आप रिलायंस में पैसा लगाओगे शेयर्स में, क्यों, आप उसका फाइनेंशियल्स नहीं देखोगे। तो मे बी ही इज अ स्टाफ गेटिंग सैलरी 20,000, नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड्स, नॉट फाइलिंग एनी इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट कनेक्टेड विथ एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो अपना रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे हैं। लेकिन हम उसको बोला तुम उतना तो ध्यान देते होगे कि सैलरी कहां कहां खर्चा हुआ, कॉपी में लिखते होगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो, मेरे को सैलरी मिला है, वेयर आई हैव एक्सपेंडेड द मनी, व्हाट इज लेफ्ट, हाउ मच सेविंग आई एम डूइंग, उतना तो कर। बोला हाँ ये करता है। हम बोला यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, but you are not preparing books, accounting records, but you are maintaining some detail of that on your calculator or on a copy or something। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जीएसटी रजिस्टर्ड, कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड, हमारे ऊपर कुछ गाइडलाइंस है, दैट गाइडलाइन सेज दैट आई नीड टू प्रिपेयर माई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स which showing the assets, liability, income, expenses, proper recording should be done so that I can show correct picture to others। हम लोग को अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। इंडिया में अराउंड 4 to 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। उसके बाद कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड, सब बहुत सारे, ये सब लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, दे आर फाइलिंग द डिटेल, कंपनीज आर फाइलिंग डिटेल इन आरओसी, नॉट ओनली इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उनको इन सब का रिकॉर्डिंग तो ठीक से करना होगा ना। हाउ कैन यू से दैट सराफ एकेडमी हैज एन इनकम ऑफ 20 लाख, कोई प्रूफ है, सैलरी कितना दिए, रेंट कितना दिए, एसेट्स कितना का खरीदे, ट्यूशन फीस कितना, रिकॉर्ड्स तो होना पड़ेगा ना। जब आप फिगर बताओगे, इट शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग इज वॉट एवर ट्रांजेक्शंस यू आर डूइंग, रिकॉर्ड देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर रिकॉर्डिंग देयर आर गाइडलाइंस, दोज गाइडलाइंस आर वेरी लॉजिकल। ये नहीं है कि गाइडलाइंस जबरदस्ती बना दिया गया आपको याद करना है, यू नीड टू लर्न, नो दैट, नॉट दैट। वो गाइडलाइंस को एक लॉजिक से बनाया गया है, हम उसको अकाउंट्स बोलते हैं, और बेटर लैंग्वेज में आईएफआरएस, इंडियन गैप, यूएस गैप, ये सब बोलते हैं। दैट सिंपल थिंग। बट आपको जो भी हो रहा है, अब घर पे भी है, मान लीजिए स्टाफ कुछ खर्चा मांग रहा है, घर पे खर्चा क्या दिखना नहीं पड़ता है, दिखना पड़ेगा सर, क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ। आई डू लेस रिकॉर्डिंग इन होम, माई वाइफ डू, बट अकाउंटिंग है, महीना में कितना पैसा आया, कहां गया नहीं गया, किसी को नहीं करना होगा, और घर का है, बट देखना तो पड़ेगा।
But when you report to somebody, income tax department, ROC, company law, investors, shareholders, it need to be followed a guidelines. आपको कोई गाइडलाइंस फॉलो करना होगा जिसको दुनिया में लोग समझ सके. वो गाइडलाइंस कोई इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. हमको वो क्लास में समझना है. हमको एग्जाम देकर पास नहीं होना है अखिल जी, वो बात की बात है. हमको उसको समझना है. अगर हम ये समझ जाए तो बिलीव करिए हमको कहीं जॉब नहीं करना है. हम खुद से, दुनिया में इतना लोग है, इतना हॉकर्स है. आजकल आप रील वगैरह वीडियो देखते होंगे. कोई जन मान लीजिए कोई समोसा बना रहा है, कोई ऑमलेट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसका वीडियो कोई बनाया तो फिर फेमस हो गया. उसका सेल ही हो रहा होगा दिन में 10,000, महीना का 3 लाख, साल का 36 लाख. वो अकाउंट्स वगैरह अगर नहीं बनाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाएगा, गवर्नमेंट जिस तरह से और बजट में चेंजेस ला रहा है, जीना मुश्किल हो जाएगा. यू कांट, इफ somebody is earning 2-3 lakh, then in that case you may not be preparing books of accounts, no detail. बट आप अगर 30-35 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई रिकॉर्ड्स, कोई डिटेल नहीं है, आप कैसे करोगे? बिजनेस आपको जेल में बंद हो जाएगा. सच्ची बोल रहा हूं मैं. तो इतने सारे हॉकर्स है मार्केट में, रोड में है. उनका अगर अकाउंट्स बनाया जाए, उनको हेल्प किया जाए, वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं देगा. मे बी इन अ मंथ ही इज गिविंग यू 1,000 रुपीज. 10,000 रुपये डेली का सेल हो रहा है, 1,000-2,000 रुपये वो इजिली देगा यार. आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह लगाओगे, अकाउंट्स बनाकर दोगे, थोड़ा सा रोड पे निकल जाओ. हॉकर्स जो जो अच्छा, उससे बात करो. उसको क्या बोलोगे? ये नहीं बोलोगे अकाउंट्स बनाएंगे. उसको बोलेंगे आपका अकाउंट्स बनने से आप बैंक से लोन वगैरह ले पाएंगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आप बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, शेयर मार्केट में लगा पाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा पाएंगे. पैसा जब आपके पास पक्का होगा, पक्का मतलब उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होगा. दे आर गेटिंग ऑल कैश सेल्स, कैश सेल ही है. लेकिन फिर भी मान लीजिए यू जीपे वगैरह कर रहे हैं, बट कैश सेल बहुत ज्यादा है, बट आप उसका अकाउंट्स बनाकर, ऐसा तो करोड़ों लोग हैं यार. बोलेगा सर हम ये काम करेंगे क्या? तो फिर करते रहो किसी का जॉब. 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख करते रहो. यू आर गेटिंग 12 लाख पैकेज, हैप्पी. आई एम गेटिंग 12 लाख. अरे भैया 12 लाख का 120 लाख हो जाएगा. वाई डोंट यू डू दिस जॉब फॉर एवरीबडी? एवरीबडी इन द वर्ल्ड रिक्वायर्ड अकाउंटिंग. डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी है, अकाउंटिंग तो सबको जरूरी है सर. हम यहां पर अखिल जी करंट एसेट्स, प्रीपेड, ये सब बात करने नहीं बैठे हैं सर. वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. ठीक से ट्रांजेक्शन को समझिए. आई मीन टू से दैट when I am purchasing an asset, say for me it's a computer, for some company it's plant and machinery, which is my example. प्लांट एंड मशीनरी क्या एक दिन में खत्म हो जाएगा क्या? दैट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस ईयर आफ्टर ईयर, एटलीस्ट मोर देन अ ईयर, 2, 3, 4, 5, 6 years. In accounts, there is a difference between the term expenditure and assets. Expenditure will exhaust, the benefit will exhaust in the year. आपने इंप्लॉय को सैलरी दिया महीना में, वो तो उस साल का खर्चा खत्म हो गया. आपको नेक्स्ट महीना फिर देना होगा, नेक्स्ट ईयर फिर देना होगा. लेकिन एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आप बार बार थोड़ी ना खरीदोगे. दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज एन एसेट. The asset will be recorded as an asset. The expense will be recorded as an expense. Salary, rent, electricity, power, they are expenses. They need to be paid every month, every year. They are for every year. But the assets are not for every year. The assets will, once purchased, will be used for many years. In accounts, we say there are two types of assets. One is fixed assets, the other is current assets. Current assets, आपके पास कैश है, यूज हो जाएगा. इन्वेंट्री है, सेल हो जाएगा. करंट एसेट चेंजेस वैल्यू एवरी डे, एवरी डे बढ़ेगा, घटेगा, आएगा. बट फिक्स्ड एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स विल नॉट चेंज वैल्यू एवरी डे. वो वैसे ही रहेगा. कंप्यूटर है, आई एम यूजिंग दिस कंप्यूटर इन द क्लास ऑलरेडी फॉर 5 years, 5 साल हो गए. लेकिन यहां पर कोई, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, हर महीना का इलेक्ट्रिसिटी अलग है. This is, I am talking about purchasing of an assets. Now, assets will be recorded as an asset.
Forget about debit credit. Asset will be recorded as an asset. Expenditure will be recorded as an expenditure. रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं, बाद वेरी सिंपल, डोंट वरी. नाउ if I am purchasing an asset for 10 crore and I am going to pay him after 3 years, अगर मैं उसको बोलता हूं भैया तुमको पैसे अभी दूंगा, अखिल जी, if I will say to the supplier that I will pay you now, whether he will charge 10 crore or he will charge less, अगर हम उसको 3 साल बाद में 10 करोड़ देंगे सर। अभी भी वो 10 करोड़ चार्ज करेगा. हाँ सोच लीजिए सर, मतलब आप 3 साल बाद पैसा देंगे तो भी वो 10 करोड़ लेगा और अभी देंगे तो भी वो 10 करोड़ लेगा. तो कोई उसको अभी देने वाला मिलेगा? कोई नहीं मिलने वाला है सर. नहीं। जब 3 साल बाद देने से भी 10 करोड़ ही देना है, हम बोलेगा आप ट्यूशन ज्वाइन करिए, ट्यूशन फीस 3 साल बाद देना है, अभी देंगे तो भी 10,000, 3 साल बाद देंगे तो भी 10,000, आप अभी कभी देंगे क्या सर? नहीं सर। तो सिंपल सोचिए ना सर, इतना उसको घुमा क्यों रहे हैं? सिंपल, दिमाग से बोझ उतारिए. जानते हैं नहीं जानते कोई मतलब नहीं है. आई डोंट वॉन्ट एनी प्रायर नॉलेज फ्रॉम एनीबडी इन द क्लास. बाहर आ जाइए सर. आप सोचिए अकाउंट्स कभी पढ़ा नहीं है, पहला बार आज जीवन में अकाउंट्स पढ़ने बैठे हैं. आप अगर कोई भी सामान खरीदोगे, आप उसको पैसा अभी दोगे 3 साल बाद दोगे, बराबर ही देना होगा. कोई उसको अभी पैसा नहीं देगा सर, एक जन भी. आप उसको 3 साल बाद देने का बात क्यों कर रहे हो? अभी क्यों नहीं दे रहे? वाई यू आर गोइंग टू पे हिम आफ्टर 3 years, अखिल जी? आपको 3 साल बाद उसको पैसा क्यों देना है सर? वाई यू वॉन्ट टू पे हिम आफ्टर 3 years? फटाफट जल्दी बोलिए सर. आ रहे सर. इंटरेस्ट, आई नीड टू गिव हिम लॉजिक, देन ओनली आई कैन यूज द वर्ड इंटरेस्ट. अखिल जी आप कम्युनिकेट करते रहिए सर. जी सर। अगर आप उसको पैसा अभी नहीं दे रहे, क्या कारण है? आप उसको क्यों नहीं दे रहे सर? देना सर तो बिग अमाउंट है और मेरा परचेस 10 करोड़ का है और मेरे पास पैसा नहीं है, बात समझ में? क्रेडिट सिंपल लिमिट बात भी है. है कि 3 साल तक पे कर सकता हूँ, तो मैं एक उसको साल यूज तक पे करूंगा। कर सकता हूं, आपको मजा मिल रहा है, उस मजा का कोई हाँ। नुकसान आपको वो नहीं देगा, नहीं। आपको सब फायदा ही दे देगा वो. अगर वो हाँ जी। बिजनेसमैन होगा कुछ तो बुद्धि होगा उसमें यार, है? ठीक है. जी। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से लोन ले लीजिए, आप लोन लेकर उसे पे कर दीजिए, बैंक को आप इंटरेस्ट देते रहिएगा जब आपको बैंक को चुकाना है. जब आप ऐसा करेंगे वो आपको जरूर बोलेगा हम 10 करोड़ से 8 करोड़ लेंगे, 8.5 लेंगे, क्योंकि आप पैसा अभी दे रहे हैं उसको. जब आप उसको पैसा अभी देंगे वो उस पैसा को कहीं भी इन्वेस्ट करके 10 करोड़ बना लेगा 3 साल में. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट सर. If I will invest my money anywhere in the world, I will get some interest return. If I will borrow, I need to pay the return. I need to pay the interest. बैंक का काम क्या है? पैसा लेना और देना. बैंक पैसा लेता भी, हम लोग जमा करते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और बैंक उस पैसा को लोन देता है. मैं अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, बैंक इज गिविंग मी 6-7%, बट बैंक लोन दे रहा है 8-9-10% पे. बैंक कमा रहा है. सब दुनिया में बिजनेस करता है सर. तो आप अगर उसको बोलोगे आप पैसा अभी दोगे, वो आपको 10 करोड़ से कमती चार्ज करेगा, से 8.8 करोड़, से फॉर एग्जांपल 8.8 करोड़. आप 8.8 करोड़ बोरो कर लिए, बैंक जाके आपने लोन लिया और सप्लायर को 8.8 करोड़ अभी दे दिया, और आप लोन वाला को, बैंक को पैसा बाद में दोगे. यू विल बी पेइंग हिम 2-3 years लेटर. यू विल बी पेइंग हिम लेटर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. आप ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि ये जो पर्सन है जिसको आप 3 साल बाद दे रहे हैं, वो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? बात तो सिंपल ही है ना. ही इज ऑल्सो चार्जिंग इंटरेस्ट. कोई भी पर्सन को आप बोलोगे 3 साल बाद देंगे, अभी पैसा कम लेगा वो, यानी कि बाद में ज्यादा क्यों ले रहा है? ही चार्जिंग इंटरेस्ट मैन. आप बैंक से लोन नहीं लेके उसी से लोन ले रहे हैं, बोल रहे हैं भैया एसेट्स का पैसा जो अभी है हम उसमें इंटरेस्ट जोड़कर तुम्हारे को दे देंगे. तो जब ट्रांजेक्शन इस नेचर का है तो उसका अकाउंटिंग भी तो वैसे ही होना चाहिए ना, फेयर अकाउंटिंग. अगर गलत अकाउंटिंग करेंगे, गलत समझाएंगे, गलत समझेंगे, तो फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे. क्या डिसीजन? अभी मैं आ रहा हूं और डिटेल में. डिसीजन किसको किसको क्या लेना है, आई विल टेक सम एग्जांपल्स. बट इफ द अकाउंटिंग इज नॉट करेक्ट, if the assets value, expenditures और incomes are not properly recorded, तो फिर अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है? फिर तो जैसे मेरे स्टाफ है ना सर, हम तो कुछ बनाता नहीं ऐसे ही,
वैसे ही एक पेज में बना लेंगे, क्या जरूरत है फिर? अगर अकाउंट्स बनाना है ठीक से बनाना होगा ना, ट्रू एंड फेयर वैल्यू उसमें दिखाना होगा। एसेट्स का वैल्यू 10 करोड़ अभी नहीं है, आप बुक्स में 10 करोड़ नहीं लिख सकते सर। 10 करोड़ तो 3 साल का इंटरेस्ट जोड़कर है, बिकॉज आप एसेट्स अभी खरीद रहे हो, पैसा अभी नहीं दे रहे हो। तो अगला आदमी आपको बोल रहा है भैया आपको 10 करोड़ देना होगा इंटरेस्ट के साथ। ना तो वो बुर्बक है ना आप बुर्बक हो, कोई बेवकूफ नहीं है, सब खाना खाते हैं। बुद्धि उसको भी है आपको भी है, दोनों को बुद्धि है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप पैसा 3 साल बाद दोगे 10 करोड़। वेन यू से हिम आई विल पे नाउ, ही विल टेल लेस देन 10 करोड़ गारंटी सर। अगर दिमाग में कुछ भी उसकी है, भूसा भरती नहीं है, वो बोलेगा 10 नहीं 8 चाहिए, 8.8 चाहिए। इनडायरेक्टली जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट। आप बैंक से लोन लेते, आपने उसी से लोन ले लिया, ऐसा समझिए। यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द सप्लायर ऑफ एसेट्स एंड यू आर पेइंग हिम इंटरेस्ट। तो आप अभी एसेट्स का वैल्यू 10 करोड़ नहीं लिख सकते। आपको एसेट्स का वैल्यू अभी क्या लिखना है? जो भी इंटरेस्ट माइनस करके वैल्यू होगा। कैसे माइनस करेंगे बाद की बात, वी विल डिस्कस। सपोज इंटरेस्ट माइनस करके वैल्यू अभी 8.8 करोड़ है, वी विल रिकॉर्ड टुडे द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच इज फेयर वैल्यू 8.8 करोड़ नॉट 10 करोड़। हम नहीं लिख सकते 10 करोड़। कैसे लिख सकते हैं यार? इट्स नॉट अलाउड। जब हम एसेट्स अभी लिखेंगे, अकाउंट्स में रूल है assets equals to liability plus capital. Either this is modern accounting equation type or the golden rules of accounting for personal account, real account, nominal account, debit credit. मैं पर्सनल रियल नॉमिनल में नहीं जा रहा, बिकॉज वो एकदम बच्चा क्लास शिशु क्लास को पढ़ाते हैं। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं बट कंफ्यूज होंगे, फायदा नहीं। मॉडर्न अकाउंटिंग में आई एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर सराफ एकेडमी के पास 10 करोड़ का एसेट्स है, तो 10 करोड़ का एसेट्स कहां से आया? चोरी करके तो नहीं आया। कुछ पैसा शेयर होल्डर प्रकाश विदिशा ने दिया, कुछ पैसा लोन फोन क्रेडिटर्स वगैरह से लिए। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इट्स एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। Liability means outsiders. Outsiders means those who are not the owner. In a company, if we talk of company, not individual, the shareholders are the owners. Shareholders का जो भी पैसा कंपनी में है, that is capital. In a company, it is called share capital. In a proprietorship concern or in a partnership, it is called capital. In a company, there are many shareholders. Everybody has a share in the ownership. So the term used is share capital. And there is a money came in the business from other than owners, outsiders, bank loan, creditors, this, that. They are called liability. If Saraf Academy has assets of 10 crore, चोरी करके नहीं आया, कहीं से आया है, that is equal to liability plus capital. Suppose a new business is started, they are purchasing an asset of 10 crore, but they will pay the money to the supplier after 3 years. So the value of the asset is not 10 crore. The value of the asset include interest. हम उसको पैसा इंटरेस्ट जोड़कर दे रहे हैं। आई एम सपोज फॉर द टाइम बिंग हाइपोथेटिकली एज्यूमिंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट द वैल्यू इज 8.8 करोड़। द एसेट वैल्यू इज 8.8 करोड़। The liability value is 8.8 crore. Presently the capital is not there, it is 0. वैसे पहले कैपिटल लाना होगा। मेरे एग्जांपल में द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। Suppose the owner has introduced some capital in the business for working capital, running purpose. ओनर लोगों ने 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया कि बिजनेस स्टार्ट होए, बिजनेस हम लोग चालू करें, कैपिटल दिया। सो दिस बिकम्स 8.9 प्लस 0.1, 10,000 रुपया दिया। नाउ द एस लाइबिलिटी इज स्टिल 8.1 प्लस 0.1 द कैपिटल। Whenever you record any transaction in the books of accounts,
वेदर द ट्रांजेक्शन इज ट्रिकी, सिंपल, डिफिकल्ट, व्हाटएवर, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर समय बराबर चलेगा। अगर ये बराबर नहीं है तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गलत बना रहे हैं। इट्स अ तराजू मेजरमेंट, ये बराबर होना पड़ेगा। इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग अप, the right hand side will also go up. If the left hand side goes down, the right hand side will also go down. It may be possible that an adjustment is only in the left hand side. There are many assets. Suppose you are selling an asset. हम अपना कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, assets computer going down, cash going up, there is no change in the liability or capital. आप बोले कि सर प्रॉफिट लॉस, एक बार मानिए नहीं है सर, एक बार आस्ते आस्ते। It is not essential that every transaction will be in both sides. There may be transaction which is happening only in the left hand side, only in the right hand side. But always after every transaction recording, this will be equal. I can say assets may be 1,000 types, liability are many types, बहुत सारा है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रॉस में ये बराबर रहेगा। ग्रॉस में दिस विल ओनली बी इक्वल। हाँ सर सॉरी यार ठीक है सर। नाउ वी आर सेइंग increase in assets debit. You will say why? Those who developed accounting 200 300 years back, आप गूगल में देखेंगे वीडियो मिल जाएगा, तो उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया भैया डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी है, आपको जरूरत पड़ता है बोलने चालने में समझाने में, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस तो करना होगा। बट मैं आज के बाद डेबिट क्रेडिट बात नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है, हम लोग ऐसे भी अकाउंट समझ जाएंगे। लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल डेबिट। इसको याद नहीं करना है। वी आर सेइंग दैट दिस इज मॉडर्न अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। बोथ द साइड्स इक्वल आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। आप अगर पुराने जमाने में जाएंगे तो डेबिट क्रेडिट अभी भी चलेगा। तो पुराने जमाने के अनुसार इन प्लेस ऑफ इक्वेशन यू से दिस फोर थिंग्स। दैट मीन्स इन माई ट्रांजेक्शन व्हेन आई सेड we are purchasing an asset for 8.8 not 10, the entry in the books will be for 8.8 not 10. I will debit the asset plant machinery, increase in assets debit, and I am not paying, I will pay after 3 years, so that's a liability. अब निखिल जी बोल रहे थे, अखिल जी बोल रहे थे प्रीपेड करंट कहां से आ गया, ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे क्या चीज आ रहा है भैया, एसेट्स आ रहा है, प्लांट मशीनरी आ रहा है, पैसा दे नहीं रहे हैं, पैसा आ रहा नहीं है जा रहा नहीं है, कैश बैंक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम लोग पैसा बाद में देंगे, देना पड़ेगा, एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो आप अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे इन प्लेस ऑफ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अकाउंटिंग, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 8.8 करोड़ बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स, लाइबिलिटी क्रेडिट नॉट कैपिटल, आप किसी और को पैसे बाद में दोगे, दिया नहीं है आपने, दोगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट 8.8 करोड़। अगर हम लोग इसको इक्वेशन टाइप लिखते हैं दोनों साइड बराबर है, अगर हम लोग इसको डेबिट क्रेडिट लिखते हैं डेबिट क्रेडिट बराबर है। इन ओल्ड अकाउंटिंग आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल। इन मॉडर्न अकाउंटिंग इफ यू गो इक्वेशन वाइज द इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल। आपको जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है दो में से एक बात ध्यान रखनी है, मॉडर्न अकाउंटिंग के अनुसार एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अनुसार डेबिट क्रेडिट के अनुसार डेबिट क्रेडिट विल बी इक्वल, एंड दीज आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट सर, दीज आर द रूल्स। अगर आप दुनिया का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन बोलोगे होगा ऐसे ही अकाउंट, कोई दूसरा नहीं बना है सर। दिस इज द ओनली वे बाय विच अकाउंटिंग कैन बी डन, आइदर यू थिंक इक्वेशन वाइज or you think debit credit wise.
डेबिट क्रेडिट में डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल विल बी इक्वल। बोलेगा सर एसेट्स का वैल्यू 10 करोड़ नहीं है सर, इंटरेस्ट अभी नहीं देना है, देंगे तब लिखेंगे, अभी थोड़ी ना। When you do the transaction, then you will record. The value of the assets is not 10 crore. The interest element is not the asset value. The interest element is the expenditure. When the period will be over, you will record the हम सैलरी 2 साल बाद देंगे, अभी लिखे क्यों? लिखे अभी? जब देंगे, जब होगा तब लिखेंगे, अभी क्यों लिखेंगे? एसेट्स हम अभी खरीद रहे हैं। आई एम परचेजिंग एसेट टुडे, आई एम नॉट पेइंग, आई विल पे लेटर, सो आई विल रिकॉर्ड एज अ लाइबिलिटी। Either debit credit plant machinery account debit increase in asset 8.8 crore and credit liability 8.8 crore। बोलेगा सर हमको क्यों जानना है ये? सर ये आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, नहीं जानना है सर। चलिए, इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, financial institution, or you are working in an organization and the organization is approaching bank for loans। हर दुनिया में सबको फंड चाहिए, सबको पैसा चाहिए। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने वाला, और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन पैसा उससे लेने वाले। आप अगर एसेट्स का वैल्यू 10 करोड़ दिखाओगे, बैंक आपका बैलेंस शीट के बेसिस पे लोन देगा, एसेट्स वैल्यू इज 10 करोड़, यानी कि आप एसेट्स का वैल्यू बैंक को गलत दिखा रहे हो। बैंक का स्टाफ को देखना नहीं आता है, गलत दिखा रहे हो, मान भी रहा है। आपका लाइबिलिटी साइड में डेट इक्विटी रेशियो है, डेट आप 10 करोड़ दिखा रहे हो, होना चाहिए 8.8 करोड़। आप गियरिंग रेशियो गड़बड़ दिखा रहे हो। आपका जो कैश फ्लो है वो इस ट्रांजेक्शन में नहीं इन्वॉल्व है, आप उसको गलत दिखा रहे हो। तो बैंकर्स आपको लोन गलत दे रहे हैं। अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचिंग फॉर द लोन, दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी गिवन दैट मच लोन, बट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, the bankers are not understanding and they are approving the loan, later on the default arises, NPA arises, bank default arises, economy default arises। कौन उसके लिए दायित्व लेगा? और आप अगर कोई कंपनी में अकाउंट्स बना रहे हो, देख रहे हो, और आप बैंक को अप्रोच कर रहे हो, आपको अकाउंट्स बनाना नहीं आता, और आप बैंक को गलत रिकॉर्ड्स बनाकर, यू आर अनएथिकल। आप गलत रिकॉर्ड्स बनाकर, गलत डिटेल देकर आप पैसा ले रहे हो, पाप है। मार्केट में बहुत सारा रूल्स वगैरह रेगुलेशंस है, फाइन, पेनल्टीज, कोर्ट में केस होते रहता है, क्यों नहीं होगा? तो अगर आप अकाउंट्स बनाना नहीं सीखोगे, बेसिक अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करोगे, हाउ द बैंक विल हायर यू। आप बोलोगे सर हम बैंक में अकाउंट्स नहीं बना रहे। अरे मेरा भाई, आप बोलोगे हम बाग में जाके फूल की खुशबू नहीं ले रहे हैं, संभव नहीं है ना यार, इट्स इम्पॉसिबल। If you work in banks and financial institution, if you work in any organization, आपको करेक्ट अकाउंटिंग जानना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। दिस इज ए कंपल्सन। मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, या आप पोर्टफोलियो एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, आप क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि भैया इस म्यूचुअल फंड में लगाओ, ये लगाओ, ऐसा। कंपनी का फाइनेंशियल्स को क्या देखा जाता है? प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब क्या है? जब उसका एसेट्स ही गलती है तो रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल के क्या होएगा? उसका एसेट्स ही 10 करोड़ आप लिख रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल के कैसे पता चलेगा? कैसे आप क्लाइंट को एडवाइस करोगे कि शेयर में पैसा लगाओ? कैसे आप म्यूचुअल फंड में एडवाइस करोगे कि ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? हाउ? कैसे एनालिसिस करोगे? आप किसी कंपनी के सीएफओ हो, सीईओ बनने वाले हैं। कंपनी में सीएफओ क्या करता है? फंड लेता है, लोन लेता है, पैसा लगाता है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, स्ट्रैटेजीज एनालिसिस करता है। अगर अकाउंट्स गलत है, अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, एसेट्स का वैल्यू गलत है, लायबिलिटी गलत है, इनकम गलत है, जब गलत अकाउंट्स के बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे? क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे? क्या बोरोइंग कर पाएंगे? नथिंग। डोंट थिंक अबाउट गिविंग द एग्जाम, पासिंग द एग्जाम। आपको कोई भी डोमेन में काम करना है, और आप अगर बोलते हो यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, और आपको अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप कौन सा डोमेन में काम कर पाएंगे? वेदर
finance, accounting, auditing, mutual fund, banks, institutions, investors, investment, अब कौन सा काम कर पाएंगे? मान लीजिए यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, दे आर डूइंग द वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज। जब एसेट्स का वैल्यू रॉन्ग है, कैश फ्लो रॉन्ग है, आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, अरे कैश फ्लो निकालेंगे कहां से? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेट इक्विटी तो गलत है। कोई भी काम करना है, व्हाट आई से, whenever anybody connected with me, what I said in the first language in 2 minutes in a voice message, if you want to work in any domain, if you want to say that I am a finance person, I am an accountant, आप अगर कुछ भी तरह से बोलना चाहते हैं, आपको अकाउंट्स आता ही नहीं है, ना अकाउंट्स, ना फाइनेंस, ना एफपीएनए, ना वैल्यूएशन, ना मर्जर्स, ना फाइनेंशियल मॉडलिंग, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। फॉरगेट अबाउट गिविंग द एग्जाम पासिंग, वो बाद की बात है सर, वो बहुत दूर का बात है। यहां पढ़ने क्यों बैठे हैं, यहां क्यों टाइम दे रहे हैं? टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज समझने के लिए। हम टीचर नहीं है, आप यहां स्टूडेंट बोलकर नहीं आए, हम लोग फ्रेंड हैं, एक दूसरा को हेल्प कर रहे हैं। हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे कि हम बाद में जीवन में कभी ना बोले प्रीपेड, करंट एसेट्स, दिस दैट। कहां से आ गया? पैसा दिए ही नहीं, लिए ही नहीं, प्रीपेड कहां से आ गया? एसेट्स खरीद रहे, पैसा 3 साल बाद देंगे, पैसा देंगे तब तो करंट एसेट्स, प्रीपेड, ये सब आएगा ना। क्यों ऐसा गड़बड़ी हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज ध्यान से ठीक से समझा हुआ नहीं, ठीक से समझना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। बोलेगा यूएस गैप और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस है? फटाफट, यूएस गैप और आईएफआरएस। यूएस गैप इज रूल बेस्ड, रूल में जो लिखा हुआ वो करना होगा। आईएफआरएस इज प्रिंसिपल बेस्ड, आप इधर उधर तोड़ मरोड़ सकते हैं। Would इज बेटर? बहुत बार प्रिंसिपल बेस्ड बेटर, बिकॉज फॉर एनीथिंग देयर इज नो रूल मेड, हाउ यू विल फॉलो, और मे बी देयर इज प्रिंसिपल, दैट मीन्स यू आर विंडो ड्रेसिंग, यू आर, माने आई मीन टू से डिजाइनिंग इट द वे यू लाइक, तो आप जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं। तो आईएफआरएस खराब भी है, अच्छा भी है। बहुत सारे ट्रांजेक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमको क्यों जानना है दोनों? आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका मल्टीनेशनल बिजनेस है, ग्लोबल लेवल पे आईएफआरएस चलता है, लेकिन यूएस में, यूएस सब्सिडी, यूएस में लिस्टिंग कराना है, आपको यूएस गैप ही जानना होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी को तो दोनों जानना होगा। एज अ सीईओ सीएफओ यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ आईएफआरएस एंड यूएस गैप बोथ। यूएस सब्सिडी के लिए यूएस गैप लगेगा और रूल बेस्ड है, मन से नहीं चलेगा। तो जो डिफरेंस है वो जानना तो पड़ेगा ना। एग्जाम देना, पास करना बाद की बात है यार, भूल जाइए आप, एग्जाम नहीं देना है हमको। एग्जाम हम ऐसे भी पास हो जाएंगे, नॉलेज है, हम ऑटोमेट, कोई हमको फेल नहीं कर सकता। इफ माई नॉलेज इज देयर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजेक्शन जो दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, एसेट्स खरीदने को रिकॉर्ड कैसे करें? अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट आई मीन टू से दैट you need to understand, I am going to teach like this for 2 months, I am not going into syllabus। जनवरी फरवरी हम अकाउंट्स क्या होता है ये सीख रहे हैं। आपको लगता है कि ये जरूरत है, जरूर आपको करना चाहिए। आपको लगता है नहीं बकबक कर रहे हैं, बेकाम का है, ठीक है, इट्स अपॉन यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी preparing PL account balance sheet will automatically be done if you know the crux of accounting, why the accounting is done, what is the purpose, कहां कहां काम आएगा, यूएस गैप आईएफआरएस का डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज आपको समझना है। समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, कैनॉट बी टीच टॉट इन 1 आवर हाफ। कोई बोलेगा सर वो तो 50 घंटे में, सर वो बहुत महान है, हम लोग बेवकूफ है सर, समझ लीजिए। हमको टाइम लगेगा, आस्ते आस्ते एग्जाम्पल देकर समझाने में। क्लासेस मैंने फिर से बोला, फिर याद दिला रहा हूं, अभी फ्राइडे, फरवरी से फ्राइडे और संडे, कुछ एक्स्ट्रा क्लास फरवरी में हो सकती है। 10 मार्च से फ्राइडे बंद, मंडे वेडनेसडे और संडे चलते रहेगा। संडे जनरली यूएस गैप होगा और अदर डेज आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग एंड ऑल दैट चलते रहेगा। फोकस एग्जाम पे करा जाएगा 15-20 मई के बाद, जब सारा चीज पढ़ ही लेंगे। ऐसे ही आता है, वी नो एवरीथिंग। जो भी मटेरियल हम देंगे बहुत सारा है, आपको दिया होगा, दिए होंगे। यू विल रेफर कापलान, you will refer my notes, and you refer for question solving, whatever came in the past terms from institute website and all that, we will be using that.
But more than question solving, we take practical discussion. Those who are working professional, maximum, आप जहां काम कर रहे हैं, जो इश्यूज आते हैं क्लास में डिस्कस करिए, लेकर आइए, मत बोलिए अपना कंपनी का नाम, फिगर्स रहने दीजिए, डोंट से अबाउट योर कंपनी एंड बैकग्राउंड, तो कोई अनएथिकल नहीं हो रहा है, और डिस्कस करिए क्लास में, हेल्प अदर्स टू डिस्कस इन द प्रैक्टिकल सेंस. इट्स 2 months विल बी डिस्कशन, नो एनी चैप्टर, हम डिस्कशन करेंगे ऐसे. आज के लिए निकलना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अनदर इवेंट एट 9 o'clock. वैसे नहीं भी होता, आई सेड ऑन फ्राइडे आई विल बी टेकिंग क्लास फॉर 1.5 hour. इट्स जस्ट अ शॉर्ट क्लास. ये मेरा कुछ मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट टॉट एनीथिंग, नो नथिंग, जस्ट वाई IFRS. व्हाट इज IFRS? IFRS इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज मिसअंडरस्टूड इम्प्रॉपरली. उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक से समझा नहीं गया है, इसलिए उसका हवा बना दिया. हवा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग. इफ यू अंडरस्टैंड क्रक्स ऑफ एनीथिंग, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन. किसी का मैं डाउट रिसीव नहीं कर रहा हूं बिकॉज दूसरा टाइम हो गया सर. नेक्स्ट दिन बात करेंगे, आप मेरे को 1-1.5 घंटा बाद मैसेज में बात कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा सर, ठीक है. आज निकलते हैं. टुडे फॉर दिस इज नॉट अ टीचिंग ऑफ अकाउंटिंग और IFRS. इट इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द IFRS इन योर ब्रेन. व्हाट इज द पर्पस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे. अगर किसी को कुछ भी पूछना है, आप 1.5 घंटे बाद मेरे को एक सेशन लेना है, उसको लेने दीजिए. देन यू कैन कॉल मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी टुमारो, आई विल हेल्प यू. ओके. जो भी मैं बोल रहा था सब मेरा लिखा हुआ है, मैं पहले से तैयार हूं. व्हाट आई विल बी सेइंग इन द क्लास, what example I will, it's not haphazard. So whatever written I will give you around 10:30 mail also, those who are registered. Okay, tata, bye bye, thank you, bye. Thank you, sir. Yes, tata.